ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں ڈیاگو میراڈونا، لائیونل میسی، پوپ فرانسس کے ملک کی۔ یہ لوگ گال پر بوسہ لے کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے مسیحیوں کے پاپائے روم پہلے نائٹ کلب باؤنسر کے طور پر کام کرتے تھے؟ وہ پوپ فرانسس کیسے بنے نہیں جانتے نا؟ کیا آپ جانتے ہیں یہاں کی 30% خواتین نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے اس ملک کا موسم ہم سے 6 مہینے پیچھے ہے؟ اس کا گرم ترین مہینہ جنوری ہے، سال کا سرد ترین مہینہ جولائی ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے شناسا ہیں کہ 86 کے ورلڈ کپ میں ڈیاگو میراڈونا نے انگلینڈ کے خلاف ہاتھ کے ساتھ گول کیا تھا اور اسے ہینڈ آف گاڈ گول کہا جاتا ہے؟ کیا آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ لائیونل میسی کے شہر میں لوگ اپنے بچوں کا نام میسی نہیں رکھ سکتے؟ لائیونل میسی کو اس کے چھوٹے قد اور حاضر دماغی کی وجہ سے لا پلگا یعنی پسو کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید اور ویلکم۔ ارجنٹائن یا ارجنٹینا، جسے سرکاری طور پر ریپبلکا ارجنٹینا کہا جاتا ہے۔ ارجنٹینا لاطینی لفظ ارجنتوم سے نکلا ہے جو چاندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارجنٹائن ایک دلچسپ ملک ہے، امریکہ کے انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ موسم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی طرح باقی دنیا سے الٹ ہے۔ ہمارے ملک میں جب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے تو ارجنٹائن میں اس وقت سردی ہوتی ہے، اور ہماری سردیوں میں ارجنٹائن میں گرمی ہوتی ہے۔ یہ ملک ہسپانیوں نے دریافت کیا تھا۔ ہسپانوی جب ارجنٹائن پہنچے اور آباد ہوئے تو پینٹاگونین باشندوں کی سرزمین تھی۔ یہ لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ یہ 23 صوبوں اور ایک خود مختار شہر پر مشتمل ہے۔ ارجنٹائن کی کرنسی کو پیسو کہا جاتا ہے۔ بیونس آئرس ارجنٹائن کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ ہے۔ 3 ملین سے زیادہ آبادی والا بیونس آئرس لاطینی امریکہ کے امیر ترین شہروں میں سے بھی ایک ہے۔ شاندار طرز تعمیر، شبینہ زندگی، ثقافتی سرگرمیوں اور یورپی ثقافت کے بھرپور اثرات کے باعث اسے جنوبی امریکہ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں فیمس ٹینگو ڈانس اسی سٹی میں ایجاد ہوا۔ بیونس آئرس میں دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی ماہر اور بک شاپس ہیں۔ نیو یارک شہر کے بعد یہودیوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی بیونس آئرس میں ہے۔ 9 ڈی جولیو ایونیو 140 میٹر چوڑا دنیا کا سب سے وسیع ایونیو ہے۔ بیونس آئرس کا ایک نوجوان تھا، باڈی بلڈنگ کرتا تھا، چنانچہ نائٹ کلب میں باؤنسر بھرتی ہو گیا۔ نوجوان نے ایک شام اپنی گرل فرینڈ کو ڈنر کی دعوت دی، انگوٹھی خریدی، ریسٹورانٹ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں چرچ آ گیا اور وہ بے اختیار چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ نوجوان نے فادر سے زندگی کا مقصد پوچھا۔ پادری نے جواب دیا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ نوجوان نے باقی زندگی چرچ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوسائٹی آف جیزس کا حصہ بن گیا۔ 1998 میں اسے ارجنٹائن کا آرچ بشپ بنا دیا گیا۔ پوپ جان پال دوم نے 2001 میں 10 نئے کارڈینل میں شامل کر لیا۔ 2013 میں پوپ نے کارڈینل کو ویٹیکن میں طلب کر لیا۔ پوپ بینیڈکٹ نے کارڈینل کو یہ بتا کر حیران کر دیا، میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، میری جگہ تم پوپ بنو گے۔ جارج ماریو برگویو 13 مارچ 2013 کو 266 پوپ بن گئے، جسے دنیا آج پوپ فرانسس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عیسائی تاریخ میں امریکی سرزمین سے پہلے پوپ ہیں۔ انٹرسٹنگ اینڈ فن فیکٹس اباؤٹ ارجنٹینا۔ کاردوبا یا قرطبہ صرف اسپین کا ہی نہیں بلکہ ارجنٹائن کا بھی دوسرا بڑا سٹی ہے۔ ارجنٹینا نے 1977 میں ایک حاملہ خاتون کو انٹارکٹیکا بھیجا تاکہ براعظم کے ایک حصے پر دعویٰ کیا جا سکے۔ سلویا کا بیٹا ایمیلیو 7 جنوری 1978 کو پیدا ہوا تھا۔ وہ انٹارکٹیکا میں پیدا ہونے والا پہلا شخص تھا۔ موٹر سائیکل کے طویل ترین سفر کا عالمی ریکارڈ ارجنٹائن کا ایمیلیو اسکاٹو کا ہے، جو 17 جنوری 1985 کو گھر سے نکلا اور 2 اپریل 1995 یعنی 10 سال بعد واپس آیا۔ اس نے 7,35,000 کلومیٹر کا سفر کیا اور 114 ممالک اور آزاد علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران 47,000 لیٹر پیٹرول، 1300 لیٹر انجن آئل، 86 ٹائر، 12 بیٹریاں اور 9 سیٹیں استعمال کی۔ صرف ایک بار انجن تبدیل کرنا پڑا۔ ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا پہلا ملک ہے جس نے 2010 میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دی تھی۔ ارجنٹائن میں اب بھی اسقاط حمل پر پابندی ہے۔ 2001 میں ارجنٹائن کے معاشی بحران کے دوران ملک میں فسادات پھوٹ پڑے، بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور صدر کے استعفیٰ کے بعد 10 دنوں میں 4 صدور کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔
ब्यूनस आयरस में लारिकोलिटा कब्रिस्तान में कब्र की कीमत $70,000 तक जाती है, जिसकी वजह से ये जमीन का सबसे महंगा प्लाट कहलाता है। अर्जेंटाइन के पास लातीनी अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो 48,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। अर्जेंटाइन के चे गुवेरा का असल नाम अर्नेस्टो गुवेरा था। 200 कार्लोस सालमेनम शामी तारकीन वतन का बेटा और मुस्लिम था, लेकिन 1999 में अर्जेंटाइन का सदर बनने के लिए इसने मसीहत इख्तियार कर ली थी। अर्जेंटाइन में इस वक्त 92% मसीही, 2% मुस्लिम, 1.3% यहूदी और 1% बुद्धमत और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। अर्जेंटाइन का कुल रकबा 27,66,891 मरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 8वां बड़ा कंट्री है। अर्जेंटाइन के शमाल में पिरागोए और बोलीविया, जबकि चिली जनूब और मगरब की जानिब वाक़ है। शुमाल मशरक में दुनिया भर की मशहूर 3 पॉइंट कंट्री मीट में से एक है, जहाँ 3 ममालिक अर्जेंटाइन, पिरागोए और ब्राज़ील मिलते हैं। फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना 3 मसावी उफ़क़ी बैंडों से बना है। टॉप और बॉटम हल्के नीले रंग और सेंटर में वाइट। इस पर 32 किरणों वाला चमकता हुआ सूरज बना है, जिसका इंसानी चेहरा सन मई के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटाइन की आबादी 4,62,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 32वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी जीडीपी पर नज़र दौड़ाएं तो अर्जेंटाइन जनूबी अमेरिका की बड़ी मईशतों में से एक है। अर्जेंटाइन का जीडीपी तकरीबन $446 बिलियन है। अर्जेंटाइन G20 का रुकन मुल्क भी है। अर्जेंटाइन में हर साल तकरीबन 10 लाख टन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके जीडीपी का 15% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसमें बायोफ्यूल, दवा साजी और मशीनरी शामिल है। $20 अरब के करीब तो सिर्फ ये टेली कम्युनिकेशन आलात सेल करके कमाता है। अर्जेंटाइन की सरकारी ज़ुबान स्पेनिश है। हिस्पानवी दुनिया के 20 ममालिक की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये मैंदारन चाइनीज़ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मादरी ज़ुबान है और अंग्रेज़ी के बाद दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान भी स्पेनिश है। अर्जेंटाइन में इतालवी आबादी इटली से बाहर दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है, जिसमें तकरीबन 25 मिलियन लोग हैं। 10 लाख अफराद अरबी जबकि 5 लाख अफराद जर्मन बोलते हैं। इसके अलावा गोरानी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अर्जेंटाइन में तालीम का म्यार बहुत बुलंद है। इस वक्त 97% अफराद ख़्वानदा हैं। अर्जेंटाइन में दुनिया में फ़िल्म देखने की शरह सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटाइन गंदम बरामद करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का 20% लीमू अर्जेंटीना में पैदा होता है। सोयाबीन के दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक है। किनुआ के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। जिबूती काबा ट्री का फल बराह रास्त तनों और शाखों पर उगता है और इसका जायका ब्लूबेरी और दही जैसा होता है। अर्जेंटाइन के पीडो मार्टन ने मोहब्बत करने वाली बीवी की याद में गटार की शक्ल में 7,000 दरख्त का जंगल लगा दिया था। अर्जेंटीना 50 मिलियन से ज़्यादा मवेशियों की आबादी वाला दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है। अर्जेंटाइनी बीफ अपने मुकम्मल जायके और नरमी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ का सबसे मशहूर फूड बारबेक्यू है। डोल्से दी लीचे अर्जेंटाइन में मकबूल क्रीमल की चटनी है। एम्पनाडास एक किस्म की बेक्ड या फ्राइड पेस्ट्री है। यर्बा मेट अर्जेंटाइन का कौमी मशरूब है। अर्जेंटाइन के बारे में बात करना और फुटबॉल का जिक्र न करना काफ़ी हद तक नामुमकिन है। अर्जेंटाइन ने 1978 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा अर्जेंटीना 86 और अब 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। अर्जेंटाइन का कौमी खेल पाटो है। ये पोलो और बास्केटबॉल के मुरक्कब की तरह है। इसके अलावा अर्जेंटाइन 5 मरतबा पोलो आलमी चैंपियन भी बन चुका है। साइंस की दुनिया में अर्जेंटाइन ने बड़ा नाम कमाया है। 3 नोबेल इनाम वसूल कर चुका है। पहला मसनूई दिल इसी मुल्क में बना है। फिंगरप्रिंट्स टेक्नोलॉजी भी अर्जेंटाइन की इजाद है। हाल ही में इसके साइंसदानों ने गाय के मैदे में बनने वाली गैस से गाड़ी चलाकर पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। अर्जेंटाइन में जापान के बाद एनोरेक्सिया की दूसरी सबसे ज्यादा शरह है। कोहे एंडीज हिमालय के बाद दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। इसका हाईएस्ट पॉइंट 6,924 मीटर है। परीटो मोरिनो ग्लेशियर मीठे पानी का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। ये ग्लेशियर सुकड़ने की बजाय दिन में 2 मीटर बढ़ता है। अर्जेंटाइन में कदीम लोगों के रहने के सबसे पुराने सबूत पैटागोनिया में केव ऑफ हैंड से मिले हैं, जिनकी पेंटिंग्स 9,370 साल पुरानी हैं। ज्यादातर पेंटिंग बाएं हाथों की बनी है। पैटागोनिया का मतलब है लंबे पाँव वाले लोग।
मेंडोजा वाइन रीजन एंडीज पहाड़ों के दामन में दुनिया में शराब पैदा करने वाले सबसे बड़े इलाकों में से एक है। दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर एनर्जी पार्क 9,60,000 सोलर पैनल की असेंबली से 4,000 मीटर की बुलंदी पर एक साल में चाइना ने मुकम्मल किया है। मून वैली यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। ये चट्टान की तहें दर हकीकत ट्रियासिक दौर में वापस ले जाती हैं, जब डायनासोर पहली बार जमीन पर आए थे। ओरायन नेबुला की तस्वीर अर्जेंटाइन के पहाड़ों के ऊपर से खींची गई है। इस सितारों के झुरमुट का नज़ारा नंगी आंख से अर्जेंटाइन के लोग रात को कर सकते हैं। अर्जेंटाइन का सबसे लंबा दरिया परान रिवर है। अर्जेंटाइन बहुत से नायाब जानवरों का घर है, जिनमें से आर्माडेलोस और कैपिबारास शामिल हैं। अर्जेंटीना के कुदरती अजायबात में इवासो आबशार शामिल है, जो तकरीबन 2700 मीटर तक फैला हुआ है। ये नबातात और हैवानात की बहुत सी नायाब और खतरे से 2-4 गाइंट आउटर और गाइंट आंट ईटर का घर है, जिसकी जुबान 2 फुट 60 मीटर तक बढ़ सकती है। किंग वल्चर ये मैक्सिको और अर्जेंटाइन में रहने वाले गिद्ध बादशाह की शक्ल बहुत ही रंगीन होती है, जो इन्हें इनके गिद्ध रिश्तेदारों से मुमताज करती है। हॉलर मंकी बहुत ज्यादा चीखते हैं, इनकी आवाज 3 मील तक सुनाई देती है। अर्जेंटाइन दुनिया में मैजेलानिक पेंगुइन की सबसे बड़ी आबादी का घर है। मुख्तसर दुम वाला चिंचिला अपने नर्म बालों के लिए मशहूर है। फर कोट बनाने के लिए इसे मारा जाता है। अर्जेंटाइन पहला मुल्क था जिसने दुनिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 23 अगस्त 1920 को शुरू की थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट्स में बताएं हमें अगली वीडियो किस कंट्री की बनानी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।